Hello students, today in this session we will try to learn more about verbs and kinds of verbs. In our previous video we already learned about the verb and some information about its kind. So today in this session we will try to cover more points about verb and its kinds. So let's start. Let's revise it. Helping verbs क्या है? हमने हमारे अगले वीडियो में देखा था व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को उसकी एक्शन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। यहाँ पर वी हैव ईटन, ईटन हमारा मेन वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब है जो उसके जो मेन वर्ब है उसकी एक्शन को एक्सप्रेस करता है। दे आर यूज्ड टुगेदर टू एक्सप्रेस द एक्शन and we have primary helping verbs. These are the verbs be, do, have. Note that we can use these three verbs as a helping verb or as a main verbs also. Here be being verbs, am is are, was were, be being been. Have possessive verbs, have has had. It shows ownership. Do, does, did. Now, what is being verbs? It state existence, यानी कि person और thing क्या है वो दिखाता है। For example, I am a teacher. तो मैं क्या हूँ? Teacher हूँ। I am यहाँ पर ये सजेस्ट करता है, एक्सप्रेस करता है कि मैं एक टीचर हूँ। You are a doctor. यहाँ पर are हमारा being verb है जो कि ये दिखाता है कि आप एक डॉक्टर हो। It state existent and also included as helping and linking verbs. Saying verb. Saying verb express a spoken action. जैसे कि हम जो कुछ बोलते हैं और एक बोलकर जो एक्शन करते हैं that is saying verb. And we think, when we think something, that is also saying verb. And when we feel something, that is also saying verb. यानी कि what we speak, what we think and what we feel all are saying verbs. जैसे I was talking to the bus driver, talking, saying verb. The man shouted out, shouted. The lady whispered in the movies, whispered धीरे से बोलना, that is also saying verb. Here we have all action verbs जो कि हमें करनी पड़ती है, ना ही सिर्फ बोलकर या फील कर नहीं, पर हमें कुछ एक्शन करनी पड़ती है। जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन करता है, दैट इज एक्शन वर्ब। रन, क्लीन, डांस, वॉक, क्राई, ये सब सिर्फ सोचकर या बोलकर नहीं पर करना पड़ता है, एक्शन करके करना पड़ता है, दैट इज एक्शन वर्ब्स। Now, what is transitive and intransitive verbs? Transitive verbs need an object. Transitive verb को object की जरूरत पड़ती है। I bought a car. Here, bought transitive verb है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में मीनिंग नहीं बनाता, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट मीन्स कार की जरूरत है, तो यहाँ पर कार हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में ऑलवेज नाउन प्रोनाउन ही होता है। यू बाय समथिंग, what did you buy? A car. You cannot just say I bought. ये incomplete है, incorrect है। You need a direct object after transitive verb. So in this case, buy verb is verb that are transitive verb. Sorry, bought. Here we have past form of buy. So bought is our transitive verb because it needs an object. Intransitive verb cannot have an object. The baby smiled. तो यहाँ smiled यानी कि verb के साथ उसका meaning complete हो जाता है. That is intransitive verb. You cannot have an object after an intransitive verb. You can not smile something. We waited but nobody came. Waited
यहाँ पर भी ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि वर्ब के साथ कंप्लीट मीनिंग बन जाता है, सेंस बनती है। नोबडी केम, केम ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वर्ब दैट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और in one sentence and intransitive in another sentence, जैसे कि I stopped the car, यहाँ पर stopped ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि उसे कार यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। द कार स्टॉप्ड, यहाँ पर ये पूरा मीनिंग बन जाता है वर्ब के साथ, इसे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज intransitive verb. Sometimes the meaning of a verb changes depending on whether that verb is transitive or intransitive. He runs a small grocery store. Run, here it is transitive. He runs along the beach every morning, that is intransitive. Now with our textbook, the verb and kinds of verb. Here look at the picture. Raman runs, the girls dance, fish swim in the river, fire burns. Here run says something about Raman, dance says something about the girl, and swim says something about fish, and burns says something about fire. So words which tell us what people or thing are doing, all are verbs. ये जो बॉक्स है ये वर्ब की डिफाइन है, ये आपको अपनी CW में लिखनी है। जो वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है या पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करता है, दैट इज वर्ब्स, कि वो क्या करते हैं ये सजेस्ट करता है। लुक एट द पिक्चर्स हियर, ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स and read the following pair of sentences. Here the cows eat. Tom shut, the tailor made, Ashok struck. यहाँ पर ये incomplete sentence है, but in second column, if we add object, then the cow eats grass. It, यहाँ पर cows plural है इसलिए verb को s नहीं लगाया। यहाँ पर the cow singular है तो verb को s लगेगा। And it needs object grass. Tom shut पर क्या? The door. The tailor made shirts. Ashok struck Bali. The sentence of the left are not complete. First column में sentence complete meaning नहीं बनाते. We want to know what the cows eat, what Tom shut, what the tailor made, whom Ashok struck. यानी कि eats, shut, made, struck must have some words put after each of them to make meaning clear. इन सभी verbs को मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए पीछे वर्ड्स की या तो वर्ड की जरूरत है। The sentences on the right tell us what the cows eat, what Tom shut, what the tailor made, whom Ashok struck. In other words, words are added to the verb to complete their meaning. So, words that are added to the verb to complete their meaning are called object. यानी कि जो भी वर्ड वर्ब के पीछे हम ऐड करते हैं उसको मीनिंग कंप्लीट बनाने के लिए, तो वो वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट्स आर आइदर नाउन्स और प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन ही होगा और वो वर्ब को उसका मीनिंग कंप्लीट करने में, उसकी एक्शन को रिसीव करने में हेल्प करता है। अ वर्ब दैट रिक्वायर यानी कि जरूरत पड़ती है, एन ऑब्जेक्ट यानी कि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये डिफाइन भी आपको अभी अंडरलाइन कर लो टेक्स्ट बुक में, फिर CW में लिखना। Here read the following sentences. Birds fly, Mary whipped, the sun shines. यहाँ पर fly, whip, shines ये सारे वर्ब है, पर फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे वर्ब इंट्रांजिटिव है जो
वर्ब के साथ ही मीनिंग कंप्लीट हो जाता है. In these sentences, the verbs do not require an object to complete their sense. They make complete sense by themselves. वो अपने आप में ही complete meaning बनाते हैं. Such verbs are called intransitive verb. So the define is a verb that does not require an object but makes good sense by itself is called intransitive verb. But verbs also tells what they are. यानी कि कभी कभी वर्ब्स ये भी बताते हैं कि वो खुद क्या है, उसका एग्जिस्टेंस बताते हैं, उसका स्टेट बताते हैं. जैसे कि आई एम अ टीचर, वी आर फार्मर्स, इट इज अ रोज, ये हमने देखा था. एम इज आर, वॉज वेर एंड बी बीइंग बीइंग, जो कि बीइंग वर्ब्स है. ये सारे क्या दिखाते हैं? द वर्ड एम आर इज टेल अस व्हाट समथिंग और समवन इज. जो पर्सन है वो क्या है और थिंग है वो कैसी है, क्या है, वो दिखाता है. सो दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स एंड बीइंग वर्ब्स आर एम इज आर, वॉज वेर, बी बीइंग बीइंग. एग्जांपल्स आर आई एम लेट टुडे, शी इज 8 years old. Where are you going, Sita? Shaila and her brother are still sleeping. He was their youngest son. They were angry. They had lost the match. यहाँ पर am is are, was were, ये सारे being verbs है. जब भी आप ये वीडियो खत्म हो, आप ये लेसन चैप्टर अपनी टेक्स्ट बुक में से लाउडली रीड करें. एक्सरसाइज 1, फिल बी वर्ब यानी कि being verb. have has यानी कि possessive verb. Hello, I am Anurag. I wake up at 6 o'clock. Here मैं क्या हूँ? अनुराग हूँ, यानी कि am का यूज होगा I के साथ am. Here I have a friend. Have यहाँ पर possession दिखाता है, ownership दिखाता है. Her name is Anuja. Is third person singular is. She has breakfast at night at 8 o'clock. She swims every morning. Number 3, Anuja has a brother. उसको एक भाई है. Has, it shows ownership. His name is Avinash. They have a pet dog called Joy. यहाँ पर अनुजा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसीलिए has, और they प्लूरल है, इसलिए have. Now verbs also tell us what people are saying, what people are thinking, and what people are feeling. Such verbs are called saying verb. I promise I will help you. Promise यानी कि हम कुछ बोलते हैं, तो ये saying verb है. I think this is a good idea. हम कुछ सोचते हैं, think, सोचना, that is saying verb. I love strawberry. हम कुछ feel करते हैं, तो वो भी saying verb होता है. एक्सरसाइज 2, यहाँ पर हमें वर्ब को अंडरलाइन करनी है. अंडरलाइन द वर्ब. इंस्ट्रक्शन को 2 बार पढ़े, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी है उसी तरह से काम करें. अंडरलाइन द वर्ब यानी कि सबसे पहला काम सेंटेंस में से वर्ब को ढूंढना है, फिर उसे ऑब्जर्व करना है. अगर वो एक्शन वर्ब है तो ए लिखना है, और अगर वो सेइंग वर्ब यानी कि बोलना, सोचना, फील करना ऐसा है तो एस लिखना है. हियर क्लीन्स एक्शन वर्ब. पुट्स यानी कि कुछ रखना, वो भी एक्शन वर्ब. कम, दैट इज ऑल्सो एक्शन वर्ब. हियर विस्पर, कुछ धीरे से बोलना, सेइंग वर्ब. कम, दैट इज एक्शन वर्ब. एक्शन मीन्स हम कुछ करते हैं, जैसे कि माई सिस्टर बेक्ड अ बिग चॉकलेट केक. बेक यानी कि उसे काम करना पड़ता है, एक्शन करता है, बेक करना पड़ता है, दैट इज एक्शन वर्ब. दिस पिक्चर लुक्स वेरी नाइस. लुक्स यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है, फील करना है, तो ये सेइंग वर्ब है. रिवॉल्व्स मीन्स घूमना, दैट इज एक्शन वर्ब. हॉल, that is action verb. Drives, that is also action verb.
loves, I love football. love फील करता है, हम कुछ फील करते हैं, that is saying verb. This video game is very expensive, that is saying verb. Now has, have and had are verbs which shows possession. यानी कि मेरे पास पेन है, मेरे पास नेकलेस है, तो ये ऑनरशिप दिखाता है, पोजेशन दिखाता है. आई हैव अ पेन, शी हैज सम न्यू स्टोरी बुक्स, दे हैड सम न्यू स्टैम्प्स व्हिच वर स्टोलन. यहाँ पर वर पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हैड का यूज है. हैव हैज का पास्ट फॉर्म हैड है. नाउ फिल द ब्लैंक्स विथ हैव हैज हैड. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आता है. ही, शी, इट, हैज. वी, ये फर्स्ट पर्सन हैव. रोशन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज आएगा. दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज्यादा, तो हैव. डू यू have, second person have. Rajni third person singular has. Money कभी. Here we have plural, third person है पर plural है, इसलिए have का यूज होगा. Exercise 4. Underline the transitive verbs and circle the object. देखो यहाँ पर transitive verb को underline करनी है और object को circle. अगर आपने उल्टा कर दिया, वर्ब को सर्कल किया और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन, तो पूरा रॉन्ग होगा. यानी कि हमें सबसे पहले वर्ब को फाइंड करना है और उसको अंडरलाइन कर देनी है. वर्ब के पीछे बाद में उसका ऑब्जेक्ट होगा और ज्यादातर वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है. क्लाइम्स, चढ़ना, तो ये एक्शन है, इसे अंडरलाइन की. कहां पर चढ़ता है, कैट कहां पर चढ़ी, ट्रीज पर, तो ये ऑब्जेक्ट है, सर्कल. स्क्रैचेस, अंडरलाइन. फर्नीचर, सर्कल. बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, यहाँ पर एक्शन वर्ब है ले, अंडरलाइन, और एग्स को सर्कल. टेस्टेड, कुछ एक्शन, सब्जेक्ट ने कुछ एक्शन की, उसे अंडरलाइन. क्या टेस्ट किया, सूप, उसे सर्कल. लाइट, अंडरलाइन. इट, सर्कल. कारपेंटर मेक फर्नीचर, कारपेंटर्स क्या बना रहे हैं, मेक को अंडरलाइन, और क्या बना रहे हैं, फर्नीचर, तो उसको सर्कल. टेलर्स मेक क्लॉथ्स, मेक अंडरलाइन, क्लॉथ्स सर्कल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. माय फादर वॉशेस द कार, वॉशेस अंडरलाइन वर्ब है, कुछ एक्शन है, और क्या, कार को, तो कार हमारा ऑब्जेक्ट है, सर्कल करो. ड्राई को अंडरलाइन, ईट को सर्कल. दे बाय, उन्होंने कुछ परचेज किया, तो ये हमारा वर्ब है, उसे अंडरलाइन की. और क्या परचेज की, बुक्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसे सर्कल. वी ऑर्डर, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है. सिर्फ अगर हम यहाँ पर सेंटेंस को खत्म करें वी ऑर्डर, तो क्वेश्चन रह जाएगा कि क्या ऑर्डर किया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अंडरलाइन. और क्या ऑर्डर किया, चिकन, तो उसे सर्कल, ये ऑब्जेक्ट है. ओपन वर्ब, डोर सर्कल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. क्या ओपन किया, डोर. अगर आप वर्ब को क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. जाहिर प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, हियर प्लेज, ये हमारा वर्ब है. क्या खेलता है जाहिर, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसे सर्कल की. मर्चेंट गेव, गेव हमारा वर्ब, और बैगर और कॉइन हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ये सारी एक्सरसाइज 1 to 4 एक्सरसाइज आपको पहले अपने टेक्स्ट बुक में फिल करनी है और फिर आप अपनी CW में कॉपी डाउन करना. So here we end our session and we will meet in our next session with new point.
and new exercise of a textbook. So bye everyone.